Morning students, class 9th linear equation in two variable, exercise 4.3, page number 74. In last video, we did the question number first, part 1, part 2, part 3, and today we are starting with from question number first, part 4. The question is one linear equation in two variable, x and y is given, and we have to plot a graph of this linear equation. So to plot the graph of linear equation, first of all we will find a set of solution of the given linear equation. So let us, this is the table for the sets variable x and y. We have to take at least and at most three set of solution for this equation. So how we can write this equation? First, given equation is 3 is equals to 2x plus y. So this equation can be written as if we transfer 2x from right to left, then 3 minus of 2x will be equals to y. Now left hand side is 3 minus 2x and right hand side is y. So it can be written as y is equals to 3 minus 2x. By the equality, left is 3 minus 2x, right is y. So मैंने right को पहले लिख दिया and left को बाद में 3 minus 2x. Now what we have to do? We have to put different values of x in this equation and we will solve for y. So let's put x is equals to 1. अगर मैं x is equals to 1 put up करता हूँ, then y बराबर 3 minus 2 into 1, that is 3 minus 2 1. So जब x की value 1 है, then y is also 1. This is the first set of solution, that is for variable x is equals to 1, y will be 1. Again let's put x is equals to, let us suppose अगर मैं plus 2 put up करता हूँ, then y will be equals to 3 minus 2 into 2, that is 3 minus 4, that is minus 1. So when x is 2, then y is equals to minus 1. This is the second set of solution, x की value 2, then y is equals to 1. Now you can draw the graph of by these two sets, but if there is any error, then your line will be straight, but the answer may be wrong. So you have to take one more set. Why I am telling about this? Because in your book, maximum graph are drawn using only two set of solution. Okay, what you have to do? You have to take one more set of solution for the safety of your question. So let x is equals to, अगर मैं x is equals to मैं आपका यहाँ put up करता हूँ 3, then y will be equals to 3 minus 3 into 2, that is 3 minus 6, that is equals to minus 3. So जब x की value 3 है, then y की value कितनी आ रही? minus 3. This is the third set of solution. देखिए एक एक पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे सेटिस्फाई होना, x की वैल्यू 1 पुट अप करा तो 2 into 1 2 plus 1 3. ओके, जब x की वैल्यू 2 पुट अप करा तो 4 minus 1 equals to 3. x की जगह मैं 3 पुट अप करता हूँ तो 3 2 जा 6 minus 3, that equals to 3. So these are the three set of solution. Now to draw the graph of this line, what you have to do? Take simply one graph paper and draw two mutually perpendicular lines. This is the x dash axis and this is your y dash axis. Now you have to take scale. So scale हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप या कॉर्नर पे लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे ऑन. सबसे पहले स्केल मतलब आप इन पॉइंट को इस टू डायमेंशन स्पेस में, दैट इज योर ग्राफ पेपर, किस मेजरमेंट से आप प्लॉट करने जा रहे हैं. तो अपन ने माना कि ऑन एक्स एक्सिस का मतलब एक्स डेस एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आपका ग्राफ पेपर है उसमें जो वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उनमें हर एक लाइन 1 सेंटीमीटर बाद क्रॉस कर रही है. तो अपन ने क्या किया? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट माना है. सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी अपन क्या करेंगे? ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. इस तरीके से आपको क्या करना है? स्केल लिखना सबसे पहले.
Now mark the point. So 1, 2, 3, 4. लेफ्ट में -1, -2, -3, -4. राइट में x एक्सिस y के अबाउ साइड में +1, +2, +3 और +4. Then -1, -2, -3 and -4. This time you have to first mark the point on x positive, x negative, y positive and y negative. Now see the point. पहला सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, मींस ऑन x एक्सिस 1 है, फ्रॉम x एक्सिस 1 है. तो x एक्सिस 1 एंड फ्रॉम 1, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 1, 1. देन x की वैल्यू 2 है, तब y की वैल्यू -1 है, सो दिस इज द 2, -1. देन x की वैल्यू जब 3 है, देन y की वैल्यू -3 है. x की वैल्यू 3 का मतलब डिस्टेंस ऑन x एक्सिस पॉजिटिव and distance from x axis, so negative means negative direction में. So this is the third point, 3, -3. इनका आप नॉमेनक्लेचर दे दी. लेट अस सपोज फर्स्ट पॉइंट A है, सेकंड B है, थर्ड C है. नाउ फ्री हैंड से आपको क्या करना है? इन पॉइंट को सिंपली आपको ज्वाइन करना है इस तरीके से. So you will get a line which is representing 3 is equals to 2x plus y. So this is the graphical representation of this line on in 2-dimensional space, or we can say simply on graph paper. So hope this is clear. Now 9th standard में क्वेश्चन ये है. अब कुछ आप 10th में ज्योमेट्री में एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ेंगे. 9th में भी क्वेश्चन एप्लीकेशन पार्ट में, जैसे अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे ओलंपियाड वगैरह है, टीएससी वगैरह, इस तरीके से एग्जाम आते हैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 = 2x + y. आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मार्क्स मिल गए. उसमें इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है. एनटीएससी जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है और 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसी क्वेश्चन को मैं एक एप्लीकेशन पार्ट में बता रहा हूं कि लेट अस सपोज 3 = 2x + y का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और क्वेश्चन ये कह दे कि ऑन ड्राइंग द ग्राफ ऑफ 3 = 2x + y, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल enclosed by x axis, y axis and between the line of the graph of this linear equation 3 = 2x + y. means simply x axis, y axis और drawn ग्राफ के बीच में बाउंडेड क्लोज्ड रीजन का अगर आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2. तो आप ग्राफ पेपर में, जब आप स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये आप सबसे पहले एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता है? वो ग्राफ ड्रॉ करने पर यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. ये वाली जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये पॉइंट कोई P है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट आपका Q है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी योर OP. OP आपका बेस है. जितनी भी OP की डिस्टेंस है वो ग्राफ पेपर से आपको चेक करना है. OQ इस ट्रायंगल का हाइट है, सो OP into OQ divided by 2 square unit will be the area of triangle. So in this way, this type question may be extended for competitive exam point of view. So please pause the video and note down. Second question, read the question carefully. Question क्या कह रहा है? Question ये कह रहा है कि give the equation of two lines passing through the point. One point is given 2, 14, and how many more such lines are there and why? Very simple question है. आपको एक point दे रखा है 2-dimensional space में, जहां x कोऑर्डिनेट जो है इसका एब्सिसा इज इक्वल्स टू 2 है, और ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू
14 है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपकी क्या है 14 है बाय द गिवन पॉइंट। अब आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन लिखिए जिस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो गिवन पॉइंट में y की वैल्यू 14 है और x की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर। तो y की जो वैल्यू है y की वैल्यू को मैं x की वैल्यू में अगर ट्रांसफर करना चाहूं, जैसे मुझे 14 दे रखा है, मैं 14 को क्या लिख सकता हूं, मैं 14 को लिख सकता हूं 7 into 2, 7 into 2। अब लेट अस सपोज मैं y को 14 मान लूं, 14 y है, और x को अगर मैं क्या मान लेता हूं 2 मान लेता हूं, तो ये 7x एक आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए, y की जगह अगर मैं 14 पुट अप करता हूं तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट 14 होगी, x की जगह 2 पुट अप करूंगा तो x into 2 दैट इज 7 into 2 14 के बराबर आ रहा। तो ये इक्वेशन एक ऐसी है जिस इक्वेशन में अगर मैं y की जगह 14 और x की जगह 2 पुट अप करता हूं तो ये सेटिस्फाई हो रही है, मींस इस लाइन पर ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा, मैं इस लाइन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि जैसे मैंने 14 को क्या लिखा, 14 को अगर मैंने लिखा 14 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू अगर मैं लिख देता हूं 2 प्लस 12, 2 प्लस क्या लिख दिया 12 में लिख दिया, ठीक है। अगर मैं 14 को 2 प्लस 12 में लिखता हूं, 2 प्लस 12 का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं x की जगह ये पुट अप करता हूं, जैसे x की वैल्यू तो आपकी कितनी आ रही है 2 है और y की वैल्यू कितनी है 14 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 14 को अगर मैं 12 लिखता हूं तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 12। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट अप करता हूं तो y की वैल्यू 14 आ गई, ये आपकी एक दूसरी इक्वेशन है। ओके, अब मैं लेट अस सपोज 14 को ऐसे लिखता हूं 14 इज इक्वल टू मैं जैसे 4 प्लस 10 लिख देता हूं, 4 प्लस 10 लिखूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x प्लस 10 है। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट अप करता हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। So this is the first linear equation in two variable x and y. This is the second linear equation in variable x and y. This is the third equation, which in every case all the equations are satisfied by this point. मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली there are thousands lines हैं जो इन इक्वेशन को क्या करेगी, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा, और इन टू डायमेंशन अपन ये कह सकते हैं कि लेट अस सपोज ये x इज इक्वल टू 1 एंड 2, y इज इक्वल टू 14, लेट अस सपोज कोई पॉइंट है 2, 14 और मैं कहूं कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। देखिए एक लाइन इस कंडीशन में हो सकती है, एक ऐसे 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 हो सकती है, मतलब एक पॉइंट से तो अपन इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं और हर एक लाइन उस पॉइंट से सेटिस्फाई। यही आपको क्वेश्चन ये समझाना चाह रहा है कि अगर टू डायमेंशन स्पेस में x और y की अगर दो वैल्यूज दे रखी हैं तो उस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन निकल सकती है, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ में लाइन अपन पास कर सकते हैं। सो दिस इज द सम लाइंस जो अपन फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। So this is the question number second of exercise 4.3 NCERT page number 74. Please pause the video and note down. Then question number 3, हर क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही केयरफुली आपको रीड आउट करना है और ये देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, how we will solve the question. So next question, if the point 3, 4 lies on the graph of equation, question number 3, graph of the equation 3y is equals to ax plus 7. Find the value of a. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक कोई लाइन दे रखी है और लाइन ये कह रहा है कि इस लाइन के ग्राफ ड्रॉ करने पर जो इक्वेशन आ रही है, लेट अस सपोज इसका इक्वेशन ये आ रहा है,
इस लाइन का ग्राफ ये है और इस ग्राफ पर कोई पॉइंट दे रखा है आपको 3,4, लेट अस को यहाँ कोई पॉइंट P मान ले जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, निकल रही है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, x और y की वैल्यू उस लाइन को सैटिस्फाई करेगा। सैटिस्फाई करने का मतलब जहां जहां x में अगर 3 और y है वहां 4 पुट अप करने पर ये इक्वेशन सैटिस्फाई होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये लाइन वहां से निकल रही है, तो अपन यहां लिखेंगे इफ इट पासेस थ्रू। अगर ये लाइन, कौन सी लाइन, ये जो जिस भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है वो अगर इस पॉइंट से पास हो रही है तो पॉइंट क्या करेगा, उसको सैटिस्फाई करेगा। पासेस थ्रू P3,4 देन इट विल सैटिस्फाई, इतना सा आपको लिखना है। सैटिस्फाई का मतलब वो उसको सैटिस्फाई करेगी, मतलब x की जगह 3 और y की जगह 4 अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पॉइंट से ये एब्सिसा है, x की वैल्यू है, ये ऑर्डिनेट है 4, y की वैल्यू है, तो 3 into 4 is equals to 8 into 3 plus 7। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये लाइन सैटिस्फाई क्यों करेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट से अगर लाइन पास होगी तो ये पॉइंट बिकॉज लाइन के ऊपर है तो उसको सैटिस्फाई करेगा। ओके, तो अपन ने y की जगह 4 पुट अप कर दिया, x की जगह 3 पुट अप कर दिया। सॉल्व कर लो इसको, तो 3 4 12 हो गया, 3 into a 3a हो गया प्लस 7। अब 7 को मैं राइट में ट्रांसफर करूंगा, सॉरी राइट से लेफ्ट में, तो 7 12 minus 7 is equals to 3a। तो 12 minus 7 आपकी 5 आ रहा है is equals to 3। a की वैल्यू ये 3 कोएफिशिएंट है, इसको डिवाइड कर दे, या पहले ऐसे लिख ले कि 3a बराबर 5 के, तो a की वैल्यू आ गई 5/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। Next question, question number 4. Question number 4 is the taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw the graph. क्वेश्चन क्या है कि कोई एक टैक्सी है, आप जानते हैं हर शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपन ट्रांसपोर्ट के रूप में टैक्सी यूज लेते हैं। टैक्सी, ऑटो, सिटी बस, कुछ भी मान लीजिए। उसकी जो कंडीशन ये है कि वो फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक, भले आप आधा किलोमीटर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक अगर जा रहे हैं तो टैक्सी वाले ने, उस टैक्सी यूनियन ने फिक्स कर रखा है कि हर टैक्सी वाला 8 रुपए लेगा मिनिमम। अब 1 किलोमीटर के बाद अगर लेट अस सपोज आपका जहां आपको जाना है डेस्टिनेशन अगर 2 किलोमीटर तो 8 रुपए तो देने ही, उसके बाद में पर किलोमीटर आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना। तो अगर आप 2 किलोमीटर गए तो कितने रुपए देंगे, 8 + 5 13। अगर आप क्या है कि 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीस और नेक्स्ट 2 किलोमीटर का क्या है पर किलोमीटर 5 रुपीस, तो 10 रुपीस आपको एक्स्ट्रा देना, मतलब 8 + 10 आपको 18 रुपए देना। तो इस तरीके का जो मैथमेटिकली एक स्टेटमेंट दे रखा है उसको हमें लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना हो। लैंग्वेज क्लियर? आप देखिए क्या कर रखा, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस covered is equals to x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपका x किलोमीटर है और जो टोटल फेयर है, टोटल कितना किराया दिया आपने, टोटल फेयर वो आपका ₹y है। रुपीज अपन क्या लिख सकते हैं, RSY भी लिख सकते हैं, और रुपीज का सिंबल जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे रखा है ये आपका रुपीज का सिंबल है, ऐसे भी ₹y भी लिख सकते हैं। आप देखिए फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर तक का कितना रुपए है, ₹8, और फेयर फॉर एवरी सबसिक्वेंट
20 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹5 कि 1 किलोमीटर के बाद में जितने भी किलोमीटर अपन एक्स्ट्रा जाएंगे उसका आपको ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना है। तो देखिए टोटल किलोमीटर कितने हैं, x किलोमीटर, जिसमें 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी फिक्स था कि 1 किलोमीटर तक का ₹8। तो अपन क्या करेंगे कि अगर कोई आदमी x किलोमीटर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 किलोमीटर का ₹5 के हिसाब से देगा। क्यों? क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि 1 किलोमीटर तक अगर मैं जा रहा हूं, माना कि मैं 4 किलोमीटर टोटल जाता हूं, तो मैं एक्स्ट्रा पे कितने किलोमीटर का दूंगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के ₹8 लेगा और 4 किलोमीटर टोटल गए, तो जब ₹8 आपने 1 किलोमीटर के दे दिए तो ₹5 के हिसाब से कितने किलोमीटर को देंगे, 3 किलोमीटर। अगर आप 5 किलोमीटर गए तो फर्स्ट किलोमीटर के ₹8 है, तो एक्स्ट्रा कितने किलोमीटर हुए, 5 माइनस 1 4 किलोमीटर। तो अगर हमारा टोटल किलोमीटर x है तो x में से 1 किलोमीटर घटा दूंगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो वो मिनिमम चार्ज ले ही रहा है ₹8। तो ₹8 तो आपका फर्स्ट किलोमीटर का, टोटल किलोमीटर कितने गए अपन x, तो मैं एक्स्ट्रा किलोमीटर कितने हुए x माइनस 1, और वो किस रेट से लेगा, ₹5 से। तो ₹8 फर्स्ट किलोमीटर के, टोटल किलोमीटर x थे, उसमें 1 किलोमीटर के अपने ₹8 दे दिए। अब ₹5 के हिसाब से कितने किलोमीटर होगा, उसमें से 1 कम कर दो, x माइनस 1 इंटू 5, और ये किसके बराबर हो गया, टोटल किराया y के बराबर। तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। इसको सोल्व कर लीजिए, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 को मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू x 5x माइनस ऑफ 5, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 plus 5x. This is the linear equation in two variable x and y, where x is showing total kilometer covered by the taxi and y is the total fare. तो लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन तो ये। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे x एंड y की। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, और मिनिमम 3 सेट ऑफ पॉइंट्स आपको लेने हैं। 3 सेट ऑफ पॉइंट इस तरीके से लेने हैं कि आपको इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सके। तो 4x इज इक्वल टू, सबसे पहले अपन 0 पुट अप कर देते हैं, x की जगह 0 पुट अप करेंगे तो y बराबर 3 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज 3। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। सेकंड x इज इक्वल टू -1 पुट अप करते हैं तो y बराबर 3 प्लस 5 इंटू -1 दैट इज 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 का मतलब जब x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, -2। ये दूसरा पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। जब x की वैल्यू अगर अपन लेट अस सपोज x की वैल्यू पुट अप कर देते हैं अपन 2, तो 10 -2 पुट अप करेंगे तो -10 प्लस 7, तो x इज इक्वल टू अपन -2 पुट अप कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 10 दैट इज -7। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -7। इस प्रकार से आपकी 3 सेट ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट आ गई। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। So please pause the video, note down this first, then we will draw the graph. Now इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें देखिए आपने सेट ऑफ सॉल्यूशन ले लिया है और 2 डायमेंशंस पे इसमें ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रॉ करें, x o x days, y o y days। इस तरीके से स्केल लेंगे एंड पॉइंट मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, then -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7। then y axis पॉजिटिव पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये आपका 8 हो गया। ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इस प्रकार से यहाँ स्केल लिखेंगे। ऑन x axis 1 centimeter is equals to 1 unit, on y axis also 1 centimeter is equals to 1 unit। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तब y की पॉजिटिव 3, दिस इज
0,3 पहला पॉइंट है। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू आपकी -2, ये दूसरा पॉइंट आ गया आपका -1, -2। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही, -7, तो -7 आएगा यहाँ पे, -2, -7। दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक आपको लाइन ड्रॉ करनी, जो इस प्रकार से ड्रॉ होगी। So this is the graphical representation of this linear equation related to taxi fare and total kilometer covered by the taxi. Please pause the video. Not up. Question number 5. From the choices given below, select the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7. The questions are given this type. Two graphs are drawn. First graph is this 4.6। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक लाइन का ग्राफ दे रखा है जो कहां से निकल रहा है, इस तरीके से ग्राफ इज ड्रॉन और इस ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट है आपका 1, दूसरा पॉइंट है 0,0 और तीसरा पॉइंट दे रखा आपका 1, -1,1। These are the 3 point on the graph paper. Similarly दूसरा ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। ग्राफ इस तरीके से निकल रहा है। ग्राफ ऑन y एक्सिस 2,0 है, ऑन y एक्सिस 0,2 है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वन मोर पॉइंट दे रखा है, दैट इज योर -1,3। अब आपको ये देखना है कि 4.6 के लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे। एक ऑप्शन है y x का, दूसरा ऑप्शन है x + y 0 का, तीसरा ऑप्शन है आपको y 2x का और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2 + 3y = 7x का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले क्वेश्चन समझिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए भी लिख देते हैं अपन। इस क्वेश्चन के लिए पहली चॉइस दे रखी है आपको y = x + 2, दूसरी चॉइस दे रखी है y = x - 2, तीसरी चॉइस दे रखी है आपको y = -x + 2 एंड फोर्थ चॉइस इज योर x + 2y = 6 की। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार, जल्दी से देखिए। एक ग्राफ पेपर, ये आपका पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। आपको ये चेक करना है कि इन 4 लीनियर इक्वेशन में से ये ग्राफ किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन 4 ऑप्शन में से ये ग्राफ किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इन तीनों पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके देखना है। जो लाइन इन तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपकी लाइन होगी। देखो पहला पॉइंट है -1,1, x की जगह -1 पुट अप करूं तो y = +1, ये तो 1 = 1, मतलब ये सेटिस्फाई इस पॉइंट से नहीं होगी तो दूसरे पॉइंट से भी नहीं होगी। देखो दूसरा x + y = 0, x की जगह 0 0 पुट 0 + 0 0 होगा, x की जगह में +-1 और y की जगह +1 पुट तो -1 + 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करा। तो फर्स्ट का ऑप्शन ये करेक्ट है। सेकेंड इक्वेशन में देखिए कि x की जगह अगर मैं -1 पुट अप करता हूं तो -3 = -1 + 2, ये इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, यहां पुट अप करके देखता हूं y की जगह 3, ये -1, ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा। यहां थर्ड में पुट अप करके देखते हैं, देखो y की जगह 3, x
So see, this point is not satisfying this. This point is also not satisfying this. But यहाँ put up करते हैं y is equals to, मैं अगर 3 put up करता हूँ तो y is equals to 3 और x की जगह -1. तो minus of -1 plus 2, that is 1 plus 2, 3. So 3 is equals to 3 means this point satisfying this equation. So other point will also satisfy. So right option is this. And in previous question this was the right option. तो आपको क्या करना है, तीनों पॉइंट को हर एक लाइन में पुट अप करके देखना है. जिस लाइन में तीनों पॉइंट जिस लाइन को सेटिस्फाई कर देंगे वही लाइन represent the graph of this linear equation. So please pause the video and note down.